Hello, dear soldiers. Good morning, good afternoon, good evening to each and every one. I hope that you will be fit and fine. And I would like to congratulate wish to each and every soldiers of the 9th class, especially who have participated into the online examination conducted by the school, and you people have given a wonderful responses from your side. And after the finishing of this first online test examination, again we'll just resume our video lecture and just move over the chapter number 3, in which we study about the atoms and molecule. So my dear soldiers, please be ready with copy and pen to be understand the atoms and molecule. Already up to now we have studied about the matter as well as the composition of matter into the universe in the form of matter surrounding us and is matter pure. These two chapters already we have discussed. But when the matter was discovered, when it was just thought by the philosophers that this universe is just made up by the two things, that is matter as well as energy. So after that there was a big question into the mind, into the philosophers, that how the matter is distributed into the universe, how the matter is distributed into the universe. And regarding this question, regarding this queries, different philosophers have the different opinion. They had the different opinion about the distribution of the matter into the universe. Very ancient philosophers, they were just thinking that matter is just continuously distributed into the universe from one end to another end. But our great Indian philosophers, approximately before 500 BC, before Christ, before 500 BC, just our Indian philosophers, they were thinking that just matter is just made up by the small fraction. This matter is not continuously distributed into the universe. Our great Indian philosophers, they had such kind of the opinion, they had such kind of the views that matter is not continuously distributed into the universe. There is just a separation. There is the separation. Is it not? By this philosophy, they were saying that one Hindi quotation that पंच तत्व मिल बना शरीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। और इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। वो कौन कौन सा है? एयर है, स्काई है, अर्थ है, फायर है और वाटर है। ठीक है, इन 5 तत्वों से शरीर मिलकर के बनी है, ऐसा कहना था हमारे इंडियन फिलोसफर्स का। इज इट नॉट? लेकिन आफ्टर दैट some philosophers like the Democritus, Lippius, Dalton, they just against of the continuous distribution of the matter into the universe. They were also in favor, they were also in strong support of the Indian philosophers that matter is discontinuously distributed into the universe. इसका मतलब क्या है कि मैटर के बीच में कुछ क्या है? स्पेस है। मैटर के बीच में क्या है? कुछ स्पेस है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिकली जो कॉन्सेप्ट थ्योरी पेश किया, दैट वाज द डाल्टन, जॉन डाल्टन, who just given the postulation about the distribution of the matter into the universe, and according to his postulation, according to his theory, that is called as the Dalton atomic theory, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने पॉस्टुलेशन को, अपने आइडिया को डाल्टन ने पेश किया, प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया कि मैटर को यदि हम डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा छोटा सा पार्ट बनेगा जिसको कि हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वी कांट बी डिवाइड बाय एनी फिजिकल और द केमिकल मीन्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एटम। That is called as
एटम। ए मतलब नहीं, टर्म मतलब डिवाइड, यानी द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर which cannot be divided by any physical or the chemical method, that is called as the atom. What is the definition of atom? Atom is the smallest portion of the matter which cannot be divided any physical or chemical method, that is called as the atom. किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर, अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो स्फेरिकल टाइनी पार्टिकल्स है, उसकी जो प्रॉपर्टी क्या होगी? बराबर होगी, सिमिलर होगी। सभी एटम्स की जो प्रॉपर्टी होगी क्या होगी? वो सिमिलर होगी। एटम जो है वो पर्टिकुलरली मैटर के अंदर एक फिक्स्ड पोजीशन पे क्या होता है? अरेंज रहता है। एटम क्या करता है? एटम जो है केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेट करता है, यानी वो कंबाइंड स्टेट में रहता है। एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है। सो माय डियर सोल्जर्स, यदि हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्या करें? एक पॉस्टुलेशन यानी एक फ्रेम में, एक पॉइंट में 1 by 1 सिक्वेंसली अरेंज करें तो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज मेड अप बाय द स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज द एटम। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एटम इट विल बी सिमिलर टू ईच अदर। हर एक एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। दिस एटम इज जस्ट ऑक्यूपाई एट ए फिक्स्ड पोजीशन इनटू मैटर, एंड इन एटम के बीच में क्या होगा? छोटा छोटा स्थान होगा, स्मॉल स्पेस होगा, और इसी स्पेस को क्या बोला गया? इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। बोलो बात समझ में? तो इस तरीके से वी कैन मेक अ फ्रेमवर्क, वी कैन मेक अ वन पिक्चर ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अ लिटिल बिट होमवर्क आई एम गिविंग टू यू। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि क्या आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। Into the NCERT books there is just given the Dalton atomic theory. So a little bit homework for you today. What is that? You will write the Dalton atomic theory in your copy, fair copy. चैप्टर 3 शुरू हो गया है। आप फिर से एक बार रेडी हो जाइए अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और यू विल राइट, आई होप दैट यू आर प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट और द नोट, सो यू विल राइट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन अ फेयर कॉपी फ्रॉम वेयर? From the NCERT book. Already I have explained what is the Dalton atomic theory. You will just go through it. Then after the discovery of atom, या we can say after the atom concept, different साइंटिस्टों के बीच में एक वॉर छिड़ गया, एक जंग छिड़ गया। किसके लिए? कि हाउ द एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड। डाल्टन ने बताया कि हर एक मैटर का एटम क्या होगा? अलग अलग होगा। तो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी एटम क्या होगा? अलग अलग होगा। तो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल की ज़रूरत पड़ी। किसी कंट्री के साइंटिस्ट ने किसी सिंबल से किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, किसी दूसरे देश के साइंटिस्ट ने किसी दूसरे उसी एलिमेंट को किसी दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कि एटम के सिंबल के लिए अलग अलग साइंटिस्टों के बीच में क्या हो गया? एक जंग छिड़ गई, एक वार शुरू हो गया। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर पूरे देश के वैज्ञानिकों का एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाया गया? एक यूनियन बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, और उस यूनियन या उस कमेटी का क्या नाम था? IUPAC। क्या नाम था? IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वैज्ञानिकों की एक साइंटिस्टों की क्या है? यूनियन है, ग्रुप है, जो ये डिसाइड करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर किस प्रकार के रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। तो इस IUPAC के मेंबर ने डिसाइड किया कि व्हाट शुड बी द सिंबल ऑफ
पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के लिए क्या सिंबल होगा उसके लिए उन्होंने एक निर्णय बनाया और उसको ये कहा कि ये इंटरनेशनली यानी पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये सिंबल क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा होमवर्क और है, क्या है कि आप हाइड्रोजन से लेकर के और कैल्शियम तक के जो भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के जो भी एलिमेंट हैं उनका सिंबल भी आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। बोलिए बात समझ में आई? उस चीज़ को कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल एच, कैपिटल एच। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल एच। हीलियम का सिंबल क्या है, एच स्मॉल ई, एच ई। लिथियम का क्या है, एल स्मॉल ई। फिर क्या है, बेरिलियम का क्या सिंबल है, बी स्मॉल ई। बोरॉन का सिंबल क्या है, कैपिटल बी। कार्बन का सिंबल क्या है, कैपिटल सी। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल एन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, कैपिटल ओ। बोलिए है ना। फ्लोरीन का सिंबल क्या है, कैपिटल एफ। नियॉन का सिंबल क्या है, एन स्मॉल ई। सोडियम का सिंबल क्या है, एन इंटू ए, एन स्मॉल ए, एन ए, सोडियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, एम इंटू जी, एम स्मॉल जी, एम जी। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, ए इंटू स्मॉल एल, एल। सिलिकॉन का सिंबल क्या है, एस इंटू आई, एस आई, एस एंड स्मॉल आई, एस आई। फास्फोरस का सिंबल क्या है, क्या सिंबल है, कैपिटल पी। सल्फर का क्या सिंबल है, कैपिटल एस। बोलिए। क्लोरीन का सिंबल क्या है, सी एल। इसके बाद क्या आता है, आर्गन। आर्गन का सिंबल क्या है, ए आर, क्या है, ए आर। इसके बाद क्या आता है, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या है, कैपिटल के। कैल्शियम का सिंबल क्या है, सी ए, सी इंटू ए। तो ये हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये 20 एलिमेंट्स का सिंबल आपको लर्न होना चाहिए टू बी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। बोलिए बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 में हम लोगों ने क्या देखा कि इनिशियल कॉन्सेप्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, फाइनली डिसाइडेड दैट मैटर इज मेड अप बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, और हर एक एटम का अपना एक अलग सिंबल है। उस सिंबल में को हम लोगों को लर्न करना है अप टू 20 फ्रॉम हाइड्रोजन से कैल्शियम। आप अपने फेयर कॉपी में अपने असाइनमेंट को बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। अपना जो कोई भी डाउट है उसको आप क्लेरिफाई करने के लिए ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988 पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।